जसविंदर कौर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ਅਸੀਂ ਪੱਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ। पिछले 8 साल से आपके ऊपर अटैक्स होते थे, ਹਾਂਜੀ। क्या क्या आपको सामना करना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको होती थी, बताएं उसके बारे में। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਦਬਾਉਂਦੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। और जब भी अटैक होता था आपके हाथ पैर मुड़ जाते थे, सांस बंद हो जाती थी। हाँ जी, हाँ जी। और आप अपने हाथों से अपने गले को दबाते थे उस समय। हाँ जी। ऐसा क्या होता था आपके शरीर में उस समय? ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। और ये साथ में इनका बेटा है। आप बताएं ब्रदर कि उस समय आपके मदर के ऊपर अटैक होते थे, उसके बाद आपके ऊपर भी यही चीजें होनी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर, सेम अटैक मेरे ऊपर भी होने लगा। क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? ब्रदर मेरे नाल ना इदां हुंदी सी भी सेम अटैक मेरे ते हुंदे सीगे ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। और आपके मदर को भी जब अटैक होते थे तो बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया था। हाँ जी। क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, कौन सी बीमारी हुई इनको? ਮੰਮਾ ਕੋ ਗਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਠੀਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠਾਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। और इसी वजह से आपका पूरा परिवार जो था वो दुखी हो चुका था। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। आपने बहन डॉक्टर के पास गए, इलाज करवाया, दवाइयों से फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पिया। कितने साल मेडिसिन खाई आपने? मैं 2 साल। जब कुछ भी कहीं से भी चंगाई छुटकारा नजर नहीं आ रहा था, मन में क्या चलता था कि क्या होगा आपका? मैं सोचती हुंदी सी कि मैनू आराम ही नहीं होना इस गठिए दी तो। और इसी वजह से बहुत परेशान रहते थे। हाँ जी। आप बताएं, जब आपने अपनी हालत इतनी खराब देखी, अपने मदर की ऐसी हालत देखी है, तो क्या सोचते थे कि क्या होगा? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਣ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਸ ਐਂਡ ਆ, ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣੇ, ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। काम क्या करते थे, उसमें क्या प्रॉब्लम हुई आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ ਉਹ। तो जब इन चीजों से आप छूट नहीं पा रहे थे, आप और आपके मदर दुखी हो चुके थे, परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया, यहाँ का मालूम कैसे हुआ फिर? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਨਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ 2020 ਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਭਜਨ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਵਾਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ में ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦਾ ਗਠੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਅੱਜ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਛੂਇਆ। ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਹੱਥ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। और इन दोनों के ऊपर जब ले हैंड प्रेयर हुई थी तो परमेश्वर की सामत ने इनकी जिंदगी में काम किया। जब ये पहली बार ही आए उसी दिन परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया था। हाँ जी ब्रदर, उसी दिन परमेश्वर की आत्मा ने छू लिया सी, पूरी तरह मैं ऊपर ठीक हो गया। और आपने ले हैंड प्रेयर भी करवाई? हाँ जी, मेरे मदर दे हुई सी ले हैंड। उस ले हैंड प्रेयर को भी हम देखते हैं।
आप बताएं, जब लेहन प्रेयर हुई, परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करी, क्या हुआ उसी टाइम शरीर में आपके? ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਆ। तो उसके बाद ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। कोई गठिया का रोग नहीं है? नहीं जी, कितने समय से आजाद है दोनों आप? मैं चार साल हो गए सानू आजाद हाँ से। तारीफ करें इस बड़े डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए और छंगाई के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में परमेश्वर की प्रशंसा करें। हालेलुया हालेलुया। आज भी आप जानते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो दुष्ट आत्मा की वजह से, जादू टोने की वजह से लोगों की जिंदगी में है, जो उनसे छूट नहीं पाते। आप डॉक्टर के पास जाते, दवाइयां खाते, इलाज करवाते, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, वो दुष्ट आत्मा, वो जादू टोना आपको छोड़ के जाता है, साथ में वो बीमारियां भी जाती है। तो आज तैयार हो जाओ इस डिलीवरेंस वीक के इस हफ्ते के अंदर। आज जब आप प्रेयर को रिसीव करोगे, जिंदगी के अंदर एंटर होगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया। पिंकी है, कहाँ के रहने वाले आप? जम्मू से। 2011 में आपकी मैरिज हुई थी। 2011 में। उसके बाद आपके पास 2 बेटियां हुई। हाँ और उसके बाद से आपके ऊपर जो थे वो अटैक्स होने शुरू हो चुके थे। हाँ, उसके बाद से एक मिसकैरियर हुआ तो उस डॉक्टरों ने बोला था मुझे कि दोबारा बच्चा नहीं देखना, कि तुम्हारा बचने का चांस भी नहीं है। तो मैंने फिर ट्राई किया तो हमारा बेबी बॉय हुआ। क्योंकि जब इनको पहले प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। नवंबर 2022 में जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए, जब प्रेगनेंसी का 3रा महीना था, क्या हुआ था आपके साथ? क्या सपना आया था आपको? सपना आया था, पानी दिखता था और सांप दिखते थे और अगले दिन ब्लड भी उठे, दिखता था साथ में। और जब अगले दिन उठे तो ब्लीडिंग होना शुरू हो गई और मिसकैरेज हो चुका था। दूसरे दिन ब्लीडिंग शुरू होना हो गई। डॉक्टर ने क्या बताया इसके बारे में? डॉक्टर ने बोला कि अब भी कोई बेबी नहीं देखना। मिसकैरेज हो चुका है और डॉक्टर ने बोल दिया कि आगे बेबी के बारे में मत सोचना। हाँ बच्चेदानी कमजोर है। हाँ और इसके कारण आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ। और ये बहन बहुत ज्यादा उस समय परेशान थे। आप बताएं भाई, आप क्या सोचते थे उस समय जब बेबी नहीं हो रहा था? सर मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं नशे में इतना डूब गया था कि मैं दिन भर दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, घर वाले के साथ झगड़ा, कोई भी रास्ते में आता था किसी के साथ भी झगड़ा हो जाता था। और मैं ये रहता था कि मेरे को मरना ही मरना है, मेरे को जीना नहीं है, क्योंकि मेरे साथ इतनी जिंदगी बुरी हो चुकी थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और मेरी सिस्टर इधर सर आती थी खामरा चर्च में, तो मेरे को उन्होंने बताया कि आप खामरा में एक बार जाइए और मेरे उधर जाने के बाद आप प्रार्थना कीजिए रो के प्रभु के आगे, और प्रभु आपकी एक दिन जरूर सुनेगा। और 31 सितंबर सर मैं 2023 को इधर आया और प्रार्थना किया, और पास्टर जी ने इधर एक वर्ड दिया था कि जिनके घर में बच्चे वो आए नहीं है और सब अपने इधर आके पेड़ पे हाथ रखो और आप आशीष पाओगे। और सर मैं इधर बैठा था और मैंने ये बोला कि पिता परमेश्वर तू सचमुच जिंदा है और मुझे इस नशे मुक्ति से बाहर निकाल, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया था सर दारू छोड़ने के लिए, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, घर में रोज लड़ाई झगड़ा रहता था सर। फिर मेरे उस दिन इधर जाके रिसीव किया तो सर जैसे मैं इधर से रिटर्न किया और मेरे को एक ऐसा करंट सा महसूस हुआ कि सर मेरे को नशा मुक्ति सब बाहर हो गया। और मेरे घर में जाके मैंने देखा 3रे महीने में हमारे घर में बेबी की इन्होंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मेरे घर वालों ने बोला कि प्रभु तुम्हारी जगह हो चुके हो। और जैसे प्रभु जी इधर हमने प्रार्थना करना स्टार्ट की, क्योंकि हम जम्मू से रहते हैं, जम्मू ही रहते हैं ना, तो सर उधर ब्रांच खुल गई है। अभी हम उधर संडे चर्च जाने लगे। फिर हमारे को प्रभु जी ने बेटे की आशीष दी है और 2 बेटियां थी मेरे पास सर। सबको जय मसीह की सर। तारीफ करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं सब जन। हालेलुया। और अभी आप नशे से पूरी तरह से आजाद हैं? सब कुछ, अभी कोई नहीं, कुछ नशा नहीं है, खाली रोटी और प्रार्थना और जय मसीह।
जब बेबी नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं था, तो लोगों ने भी ताने देने शुरू कर दिए सर थे। बहुत परेशानी होती थी, रास्ते में दोस्त मिलते थे, जहाँ कोई भी रास्ते में मिलता बोलते थे सर आपके घर में बच्चा नहीं है, आपके घर में लड़का नहीं होगा। जब हम सबसे यह भी आके घर में चुपके आके रोते थे सर, या अपने में बात करते थे क्या कि सर हमारे घर में बच्चा होगा कि नहीं होगा, मगर इसका विश्वास था प्रभु पे। ये बोलती थी कि प्रभु मेरा एक दिन मुझे जरूर देगा, और प्रभु ने हमारे को दिया है। हालेलुया। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें, अपने स्थान के ऊपर ऊंची आवाज में हालेलुया बोले, और इस बड़ी गवाही के लिए जोर से गिनिया न जान में तो कितनों को समझ आई ये गवाही कि जब बेबी नहीं हो रहा था तो नशे करने शुरू कर दिए, लाइफ खराब हो गई। चर्च में आए, परमेश्वर ने लाइफ को चेंज किया, नशे खत्म हुए, बीमारियां खत्म हुई, बेबी जिसके लिए चर्च में आए थे वो भी मिला। आज लाइफ पूरी तरह से आनंदित है। आज जो भी आप में से लोग ऐसे यहाँ पे मौजूद, अगर आपके पास संतान नहीं है, अपना फेथ परमेश्वर के ऊपर रखें, और आज आप बड़ी गवाही को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले, और इस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। हम सुनते जाएंगे। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार, कहाँ से आए आप? सीतामढ़ी बिहार से। आपकी टेस्टमनी की 2021 में आप कॉलेज में स्टडी करने गए थे, तो वहाँ पे जाकर आपने नशे करने स्टार्ट कर दिए थे। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को दें कि कैसे नशे स्टार्ट हुए, कैसी लाइफ थी आपकी? 2021 में एमसीए के दौरान मैं नशे करने लग गया था दोस्तों के साथ। फिर धीरे धीरे पहले स्टार्ट बियर से हुआ, फिर दारू शराब सब कुछ धीरे धीरे बढ़ते गया, और नशे मैंने काफ़ी ट्राई किया छोड़ने के लिए, फिर नहीं छूट रहा था। मेरी लाइफ तो बहुत अपने खराब। कौन सा आप नशा करते थे आप? बियर का, दारू का, धीरे धीरे सिगरेट सब कुछ करते रहा। मतलब कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर आपने बहुत से नशे स्टार्ट करने शुरू कर दिए थे। तो आप बताएं, फिर बताइए नशों के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आते थे? मतलब जॉब घर से लेता था उस हाँ। समय। मतलब जॉब भी आप करते थे आईटी की, हाँ। और जितने भी कमाते थे भाई बता रहे कि ये नशों में उड़ाते थे अपनी कमाई सारी। कॉलेज में स्टडी करते थे, लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब सी, नशे करने स्टार्ट कर दिए। और इस भाई के ऑफिस फ्रेंड ने में जो उनके ऑफिस में फ्रेंड थे उनके साथ मिलकर भी इस भाई ने नशे करने स्टार्ट कर दिए। झूठ बोलकर अपने घर वालों से पैसे लेते थे, जितना भी कमाते थे सारी की सारी कमाई ये भाई नशे में उड़ाते थे, लाइफ पूरी तरह से पाप में थी। तो आप बताएं फिर आपने कभी कोशिश की नशे को छोड़ने की? हाँ जी, लेकिन नहीं छूट पा रहा था। फिर ऑफिस में मेरे फ्रेंड जो थे वो अंकुर नरोलिया मिनिस्ट्री से जुड़े हुए थे। उसके बाद मैं क्रिसमस पे आया था फर्स्ट टाइम। धीरे धीरे अंकुर नरोलिया मिनिस्ट्री के ऑनलाइन प्रेयर माउंटेन सारे रोज की रोटी सारे प्रोग्राम लाइव देखते रहे, और हर एवरी संडे चर्च में भी आते रहते थे। फिर 6 अक्टूबर को माता जी ने मेरे लिए हैंड प्रेयर किया। 6 उसके अक्टूबर बाद 2024 को परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो ये कलीसिया पहले हम उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। मुझको जीवन दे तू ही। तो हमने देखा पड़ता कि परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की। तो आप बताएं कि जैसे वो हाथ आपके सर के ऊपर आया, उसके बाद बताएं कि क्या बदलाव आया आपके जीवन में? लेहन के बाद शरीर बिल्कुल हल्का हो गया था, बिल्कुल अच्छा लग रहा था, और शांति के टाइप का लग रहा था। नहीं, उसके बाद नशे बिल्कुल छोड़ दिया, कभी मन नहीं हुआ। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह से फ्री है? लगभग 6 महीने हो गए थे। कोई नशा नहीं किया? नहीं किया। अपनी कमाई आपको फाइनेंशियली भी प्रभु ने ब्लेस किया है। हाँ जी, पिछले महीने में भी हो गई है। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। बाइबल में लिखा शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए है, लेकिन यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए, आपको फिर से खड़ा करने के लिए है। जो शैतान ने आपकी महिमा को छीना, हमारा विश्वास है जो नौजवान आज इस जगह पे बैठे जो नशे में, हमारा विश्वास है परमेश्वर आपकी ग्लोरी को, आपकी महिमा को फिर से इसी तरह अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया।